Good afternoon, everyone. I am Mayur, and we have gathered here to analyze the important articles of the day. Today is 10th September 2025, and here are five important articles that we would be discussing from the perspective of the APSC as well as UPSC examination. These articles are chosen from the Hindu, Indian Express, and the Assam Tribunal. For the PDF of this analysis, you may consider scanning this QR code. This is the QR code of our Telegram channel. All the important documents, PDFs are made available on this Telegram group. This is a little bit about myself. Uh, you may consider going through this profile. I have appeared in multiple mains of UPSC and IFS, have appeared in interview and have cleared couple of competitive examinations, as you can see in the details. Soon we would be starting the GS Foundation batch for APC as well as UPSC. These are the faculty members, and as you can see, all of these people are of high repute. They have helped more than 700 students, 700 candidates to achieve their dreams and serve the society. This is the contact details. You may consider contacting this number to get more information on this. All right, so let's start. Today we will be discussing IR, BIMSTEC related. Then we would be discussing about education. Then we would be discussing about rare earth minerals vis-a-vis China, IR. Then in urbanization, in society, in governance, we would be discussing the Kerala urban policy. And then from security and IR perspective, we would be discussing Nepal's current ongoing political turmoil and what are its implications for India. So without wasting any time, let's jump onto the first article of the day. Uh, this is BIMSTEC Youth Leader Summit 2025, which has started in Guwahati. गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ. It was inaugurated by the Honorable Governor of Assam. This is done in collaboration with Minister of External Affairs. भारत का परराष्ट्र मंत्रालय के अंडर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो होता है वो होस्ट कर रहा है. So what do we know about it? The Honorable Governor of Assam, Sri Lakshman Prasad Acharya ji, he inaugurated the BIMSTEC Youth Leader Fest. अब BIMSTEC Youth Leader Phase Summit 2025 को गुवाहाटी में उन्होंने inaugurate किया. Let's before getting into the details of it, let's just understand what is BIMSTEC. BIMSTEC is a grouping which was established in 1997, uh, जिसका full form है Bay of Bengal Initiative for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral and Technical and Economic Cooperation. Okay. इसके अंडर जो यूथ लीडर्स है उनका ये समिट हो रहा है. What are the highlights of this particular summit? A 7 BIMSTEC nations से आए हुए हैं. वो 7 nations is obviously India, then Bangladesh, Bhutan, then we have Nepal, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड. जब आप बिम्स्टेक की बात करते हो ना तो ये याद रखिएगा जो अ, ये ये जो इंडिया का या इस साइड में जो बे ऑफ बंगाल रीजन है ये, इसमें जो कंट्रीज आते हैं वही पार्टिसिपेट करती है. ठीक है. दिस पर्टिकुलर summit has been described as confluence of ideas and culture. It is aimed to strengthen historical and civilizational bonds of Bay of Bengal region. ये जो इस रीजन में रहने वाले जो देश है, इनमें जो रहने वाला यूथ है, उनका कल्चरल एक दूसरे से बॉन्ड होने में काफी सेंचुरी से रहा है. तो जो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल बॉन्ड है, उसको एक्सप्लोर करना, उसके अंदर कॉपरेशन को इनकलकेट करना, ये इसके पीछे मोटिव है. द फोकस ऑन यूथ
is because they act as a catalyst of innovation. They act as a catalyst of development, of peace, and of collaboration amongst different classes and sections of the society. The trade, technology, tourism, and environment, these are the areas that have been highlighted for cooperation. This whole initiative is linked with India's flagship initiative like Startup India, Skill India, आत्मनिर्भर भारत। ऐसे जो इंडिया के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है, इसके साथ इसके अलाइनमेंट में इस यूथ समिट को लिंक किया गया है। During this summit, it is like expected from the youth, or it is proposed, it is supported, encouraged that the youth should take the leadership in dealing with climate change, in dealing with disaster, and dealing with environmental degradation. अब इतना बड़ा समिट हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया? इट एनहांसेस द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अंडर द बीमस्टिक। जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल आइडेंटिटी, उसको स्ट्रेंथन कर देता है। फिर आगे जाके ये यूथ लीडरशिप को बनाता है फॉर रीजनल डिप्लोमेसी, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर इनोवेशन। इंडिया का रोल जो है ना कि एज अ नेट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइडर इन साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक एंड आईओआर जो इंडियन ओशन रीजन जो है, along with this प्लस आईओआर जो है इंडियन ओशन रीजन, इसमें एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड ग्रोथ प्रोवाइडर, इस रोल को इंडिया के ऐसा समिट कॉम्प्लीमेंट करता है। इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स India's use of soft power diplomacy via youth, via education, via cultural exchange. So let's take a 30 seconds and try and solve this question. BeamStick, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. इसमें which of the following countries are members of it? India, yes. Bhutan, yes. Maldives, Maldives, Bay of Bengal में नहीं है. Maldives is in the Indian Ocean, and if you consider towards the Arabic Sea. मालदीव्स नहीं है, म्यांमार है। थाईलैंड यस, श्रीलंका यस। सो 1 2 4 5, 3 इज नॉट देयर, सो 3 कैंसिल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एजुकेशन 5.0। ये इसका यूटिलाइजेशन आप एसए में भी कर सकते हो और इसका यूटिलाइजेशन आप जीएस2 में भी कर सकते हो। इसका ओवरलैपिंग टॉपिक कवरेज जो है वो है गवर्नेंस एजुकेशन। ओके, तो व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट कि जो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है ना, दैट फोस्टर्स क्रिएटिविटी, कंपैशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट को ट्रेडिशनल एजुकेशन शायद इतना अच्छे से डील नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन 5.0 इज इमर्जिंग। हुआ ये कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, जिस तरीके से लैंडस्केप चेंज हुआ है, जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल पे अब पढ़ाई होती है, जिस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हो पढ़ाई करने के लिए, आपका टीचर्स और किताबों के ऊपर का डिपेंडेंस कम हो चुका है। जब आप अब आपका एआई का यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है, तो इस सिनारियो में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, उसका लैंडस्केप मॉडिफाई हो चुका है, लैंडस्केप चेंज हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको न्यू एजुकेशन को डील करना बहुत जरूरी है। हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दिस चेंजिंग लैंडस्केप? कंटेक्स्ट इज ये 21st सेंचुरी एजुकेशनल लैंडस्केप हैज मूव्ड बियॉन्ड 3 आवर्स। आर क्या हुआ करते थे? फर्स्ट वाज रीडिंग, सेकंड वाज राइटिंग, थर्ड वाज अरिथमेटिक। ये बेसिक हुआ करते थे। ये 3 आर से जाकर वो 3 आईज के ऊपर चला गया। वो 3 आईज कौन से? इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, देन
उसका एनालिसिस एंड डिस्प्ले और यूटिलाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जॉन डेवी ने एक बार एक इंपॉर्टेंट थॉट कहा था जो आगे जाके कोड बन गया। वो ये था कि इफ वी टीच टुडेज स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडे, वी रॉब देम ऑफ टुमारो। इफ वी टीच टुडेज स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडे, वी रॉब देम ऑफ टुमारो, मतलब उनको हम फ्यूचर प्रूफ नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रेशन देख लेते हैं फ्रॉम एजुकेशन 1.0 टू 5.0 में क्या क्या शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट। एजुकेशन 1.0 फोकस्ड ओनली ऑन लिटरेसी बेसिक्स, मतलब पढ़ना लिखना बेसिक लिटरेसी के ऊपर इसका फोकस था। जो एजुकेशन 2.0 था उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड मल्टीमीडिया को यूटिलाइज किया गया। जो एजुकेशन 3.0 था उसने ब्लेंडेड लर्निंग, सेल्फ डिटरमाइंड अप्रोच, सीसीस को डिप्लॉय किया, करेक्टर्स, क्रिएटर्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इस तरीके से। एजुकेशन 4.0 में थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड एजेंडा हुआ, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी ड्रिवन हुआ, फिर थोड़ा सा वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए, फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस आ गए, एआई आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया। अब जो जो एजुकेशन 5.0 है जिसके बारे में अब बात हो रही है, उसमें ह्यूमन सेंट्रिक लर्निंग होगा। ह्यूमन सेंट्रिक लर्निंग will focus on intellectual, emotional, and social development of students, of learners. अभी अब 5.0 एजुकेशन के कोर फीचर्स क्या है? एक तो इट एम्फसाइजेस ऑन ह्यूमनिज्म, लाइक जो ह्यूमन वैल्यूज है, कंपैशन है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ऐसे जो ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन वर्च्यूज है, इसके ऊपर एम्फेसिस करेगा। ये 5.0 एजुकेशन जो है, इट विल मेक इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर एंड नॉट एज अ कंट्रोलर। अभी तक टेक्नोलॉजी एक तरीके से कंट्रोलर का काम कर रही है ना, और वो एज अ एनेबलर का काम नहीं कर रही है। तो ये वाला जो सिचुएशन है उसको अब वो चेंज करेगा। नाउ टेक्नोलॉजी विल बिकम एन एनेबलर। एजुकेशन 5.0 जो है, दैट स्ट्रेसेस ऑन इक्विटी, इट स्ट्रेसेस ऑन एक्सेसिबिलिटी, इट स्ट्रेसेस ऑन इंक्लूसिविटी एंड well-being, not just physical but also mental well-being। ये 5.0 एजुकेशन में तीन सेक्टर्स, जिसमें इंडस्ट्री है, एकेडमिया है और गवर्नमेंट है, इसके बीच में कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन होगा। जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, इट विल बी लिंक्ड इट विल बी लिंक्ड टू कम्युनिटी, टू लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट्स। एंड ये पूरा आइडिया एजुकेशन 5.0 का इज अलाइंड विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फॉर एग्जांपल उसके जो गोल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, फाउंडेशनल एंड डिजिटल लिटरेसी, ये जो थॉट है, ये जो गोल्स है, उसके साथ वो अलाइन करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इट हेल्प्स इंडिया ट्रांजिशन टूवर्ड्स बिकमिंग ग्लोबल नॉलेज सुपर हब। फ्यूचर वर्कफोर्स और इंडस्ट्री नीड्स की रिगार्डिंग, इट helps preparing our youth to meet the challenges. It aligns education with sustainability, ethics, and social inclusion. क्योंकि एजुकेशन का पर्पज ही ये है कि देर शुड बी अ सोशल इंक्लूजन, देर शुड बी अ proportion of ethics inculcated, there should be, the education should be sustainable in nature. This whole 5.0 addresses challenges of digital divide between rural and urban areas. It strengthens the innovation, it strengthens the entrepreneurship, it strengthens the experimental, experiential learning, the learning which is based on the experiencing the knowledge, not just rote learning, not just understanding. All right, I'll give you 30 seconds. Please go through this MCQ and then we'll solve it together.
Okay, I hope you have solved this question. With reference to Education 5.0, it emphasizes technology as a controller. No, it does not. It emphasizes technology as enabler, not controller. So first statement is wrong. Statement one is gone. Answer is option B. Let's move on to the third article, that is China and rare earth elements. China, in current situation, is the world's largest producer of rare earth minerals. It contributes over 60% of global production. Akela China alone is contributing more than 60% of the global production. Question is कि अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स न्यू एज टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है तो जस्ट इमेजिन कि हाउ मच कंट्रोलिंग इम्पैक्ट हाउ मच कंट्रोलिंग इफेक्ट चाइना विल हैव ओवर द ग्लोबल पॉलिटिक्स इन कमिंग years. Okay, let's discuss it from the perspective of the articles. Rare earth elements क्या है? These are the 17 metals. एक ग्रुप है 17 metals का. Those are called REs, rare earth elements. Those are critical for clean energy. जो हम लोग EVs यूज होता है, जो wind turbines यूज होता है, या फिर उसमें ये बहुत critical होता है. Then they are critical for defense, aerospace, electronics and high-tech devices. इसमें चाइना का पोजीशन जो है ना वो क्रिटिकल क्यों है? बिकॉज इट्स एक तो रिजर्व ही ग्लोबल के 50% से ज्यादा रिजर्व सिर्फ अकेले चाइना के पास है. अभी करंटली प्रोडक्शन में 60% से ज्यादा, मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इज फ्रॉम चाइना अलोन. एंड जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनको तो जैसे वो मिलते हैं वैसे तो यूज नहीं किया जाता, उनको रिफाइन करना पड़ता है, उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है. वो प्यूरिफिकेशन का 90% से ज्यादा सिर्फ चाइना अकेले करता है और पूरे ग्लोबल का बहुत बड़ा ये एक्सपोर्टर है. आर्टिकल बता रहा है कि देयर आर सर्टेन पॉलिसी मूव्स दैट आर इन अलाइनमेंट विद द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाइना. इन अप्रैल 2025, China has imposed export restriction on 7 rare earth which are critical for clean energy and defense. मतलब चाइना, सी यही तो मैं कह रहा था कि चाइना के पास कितना बड़ा लेवरेज आ जाता है. अब चाइना ने बोल दिया कि ये 7 जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो जितना ग्लोबल को डिमांड होगा उतना सप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स होंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अलग तरीके से उन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया. देन कुछ इंटरिम मेजर्स लिए गए. फॉर एग्जांपल, माइनिंग के ऊपर कोटा लगा दिया. ट्रेडिंग अप्रूवल्स जो थे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया. फिर उन्होंने जो एक्सपोर्ट थे उसके ऊपर बैन लगा दिया. किसके जो एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है ना वो आप चाइना से बाहर नहीं जाएगी. एक जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है वो चाइना से एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन चाइना जो एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे. उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट? फर्स्ट, यूएस और जापान जो है ना वो उसके मेजर इंपोर्टर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के. इंडिया भी अपना 75% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करता है. और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज. मोर ऑफन देन नॉट दे आर वेपनाइज्ड इन ट्रेड वॉर्स. एग्जांपल, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर हुआ जहाँ पे ट्रम्प साहब आज 50%, फिर 100%, फिर 150% टैरिफ लगा रहे थे, उस मोमेंट पे यही तो था जो लिवरेज की तरह काम कर रहा था चाइना के लिए. चाइना ने इसी को भी यूटिलाइज करके ट्रेड वॉर फाइट किया यूएस के साथ में. अब चाइना का स्ट्रेंथ क्या है बियॉन्ड रिजर्व? लाइक रिसर्च बेस्ड जो है 30% ऑफ ग्लोबल पेपर्स जो है
रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर वो सिर्फ चाइना से ही आता है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया से सिर्फ 6% जाता है, वही चाइना से जाता है 30% ऑफ ग्लोबल रिसर्च पेपर। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया इन ऑल दिस? एक, इंडिया के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। इंडिया चाइना की इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। फिर इंडिया को जो डोमेस्टिक रिजर्व्स है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। देन सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जो क्वाड में हैं, जो यूरोपियन यूनियन में जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो फ्रेंडली नेशंस है, वहाँ उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का जो इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो इनिशिएटिव है, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन का रिक्वायरमेंट है। सो टेक अ 30 seconds and try and solve this question. Attempt this question and mention your answers in the comment section. Next is Kerala's urban policy, a model for other states. केरला है ना, केरला में एक रैपिड अर्बनाइजेशन फिनोमेना है, बहुत क्विकली अर्बनाइजेशन हो रहा है, एंड केरला इज टैकलिंग दैट मीनस, केरला इज टैकलिंग दैट इशू ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन वेरी इफेक्टिवली। एंड ये आर्टिकल ये बताता है कि व्हाट कैन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया कैन लर्न फ्रॉम केरला। केरला दिसंबर 2023 में, आज से लगभग 2 साल पहले, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अर्बन कमीशन। फर्स्ट स्टेट लेवल अर्बन कमीशन इंडिया का केरला में आया। द नेम इज़ केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन। उसका ऑब्जेक्टिव ये था, मैंडेट उनको ये दिया गया था कि दे हैव टू डिज़ाइन अ 25-year अर्बन रोड मैप फॉर केरला, इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, governance reforms and financial empowerment. The need was felt to come up with such urban policy commission, or to come up with 25 years urban roadmap, urban planning roadmap, because केरला का urbanization जो है, it is very fast paced, meaning by 2025 it is expected कि 80% of the population of Kerala will be living in urban areas. रूरल सेक्शन में सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहेगा केरला में बाय द एंड ऑफ 2050। एंड केरला में क्लाइमेट थ्रेट्स बहुत सीवियर है। फॉर एग्जांपल फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स है, सी लेवल राइज है, कोस्टल इरोजन है, ये थ्रेट्स है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको कंसिडर करते हुए, उनको अर्बनाइजेशन का नेक्स्ट सेंचुरी का, नेक्स्ट 50 years का प्लान करना होगा। जो जिस ग्रोथ रेट से केरला की इकोनॉमी, सोसाइटी डेवलप हो रही है, उस ग्रोथ रेट से गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन इट, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी मच फेल्ट दैट इट्स हाई टाइम दैट केरला शुड कम अप विथ अर्बन प्लानिंग कमीशन। इसका देयर आर सर्टन यूनिक फीचर्स। फर्स्ट, इसका जो प्लानिंग है दैट इज़ डेटा ड्रिवन। देन उन्होंने हज़ार्ड मैपिंग बना रखा है फॉर फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, कोस्टल रिस्क। मतलब वो जो क्लाइमेट अवेयरनेस जोनिंग उन्होंने बनाई है, दे विल बी कंसिडरिंग क्लाइमेट अवेयरनेस जोनिंग वाइल प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 25 years रोड मैप इन केरला's urbanization. They have taken into consideration the financial empowerment. For example, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए दे कैन एक्सप्लोर municipal and pool bonds, or they can explore idea of green fees, or can explore the ideas of climate insurance. The other dimension they have thought about is governance reforms. They are planning to have cabinets for cities, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट होता है या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट होता है, सिटीज़ का कैबिनेट
का concept they are exploring, that which will be led by the mayors and will have specialist municipal cells, uh, youth led Jnanashri program. Other key feature is they will be having the community driven inputs, then place based economies, and कॉमन्स एंड केयर. फॉर एग्जांपल जो पब्लिक कॉमन्स होता है जैसे कि वेटलैंड्स है, वाटरवेज है, सिटी हेल्थ काउंसिल्स है, इन ये जो कॉमन स्पेसेस है उनको रिक्लेम किया जाएगा, उनकी दे विल बी टेकन केयर ऑफ. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक कि दिस इज फर्स्ट एवर स्टेट लेवल स्ट्रक्चरल रिसेट ऑफ अर्बनाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया. ये दिस इज फर्स्ट एवर. जो पहले सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल हुआ करता था वहाँ से हटकर नाउ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स क्लाइमेट कॉन्शियस एंड पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क. ये it is not only taking initiative or has become the first ever state to start doing it, but it has also set an example. It has provided the template for other states, which will combine technical expertise, which will combine fiscal innovation, which will combine community participation. Take 30 seconds and try and solve this question. Which of the following are features of the Kerala Urban Policy Commission? Okay. Establishment of digital data observatory for real-time urban planning. Yes. So one is correct. C is eliminated because इसमें एक नहीं है. Introduction of municipal and pooled bonds for financing cities. Yes. So 2 is also correct. So now we are left with option 1 and option A and option B. Third is city cabinets led by bureaucrats. No. It is not. They will not be led by bureaucrats, but will be led by the elected mayors. So third statement is wrong. So this is going, the correct answer is 1, 2 and 4. Here is the final article. The article talks about Nepal's political turmoil and its implications for India. करंट जो नेपाल में जो क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में आप देख रहे हो कि जेन जी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, दे बर्न डाउन द गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड दे वर्क agitating against the ban of social media and everything that followed later. ऐसे सिचुएशन में it is very much necessary that India needs to appear that it reassuring जो नेपाल के जो प्रोटेस्टर्स हैं and support governance reform discreetly. जैसे हम लोग ने देखा कि अभी मैंने आपको कंटेक्स्ट एक्सप्लेन किया कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट नेपाल में हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस क्राइसिस है, बहुत लोग मर चुके हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीट नेपाली कांग्रेस, बीट CPN UML, बीट माओइस्ट सेंटर, all are seen as ineffective and self-serving. Why does it matter to India? ये India, why should it be bothered? For obvious reason कि ये जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नेपाल का बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट शेयर्स ओपन बॉर्डर विथ इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एक्सेट्रा. ऑल्सो सोसाइटल स्पिल ओवर रिस्क होता है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है जो तो वहाँ से रेफ्यूजीज़ को इंडिया में भेज सकती है, वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी जनरेट कर सकती है, क्योंकि व्हेन क्राउड टेक्स ओवर, क्राउड हैज़ नो मेंटालिटी, क्राउड हैज़ नो फेस, क्राउड हैज़ नो लीडर. वो कलेक्टिवली काम करता है और उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन इशू. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ज़्यादा कुछ करेगा तो इट वुड लुक लाइक एन इंटरफेरेंस इन नेपाल्स इंटरनल अफेयर्स. देन देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ चाइना, क्योंकि कोई भी इंस्टेबिलिटी हो कहीं पे भी हो, वो अपॉर्चुनिटी दे देता है चाइना के लिए टू influence the geopolitics of that particular country. Another
रीज़न वाई इंडिया शुड बी कंसर्न इज से गवर्नेंस इन नेपाल अगर वो कोलैप्स हो गया, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट लेस सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वो पूरा बॉर्डर स्टेट जो इंडिया के है, सिक्किम से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन सब में डिस्टेबलाइजेशन को प्रमोट कर सकता है। जो स्टूडेंट यूथ अनरेस्ट है वो एंटी इंडिया नैरेटिव को भी बढ़ावा दे सकता है। एंड जो नेपाल की जो फ्रजाइल पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट माइट अंडरमाइन बायलैटरल प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ऐसे सिचुएशन में व्हाट इंडिया शुड डू? India should follow the policy of restraint and non-interference. India should not interfere. India should build trust by supporting the Nepalese aspiration in education, scholarship and cultural ties. जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको इंडिया शुड एनकरेज, डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया शुड एनकरेज, एंड इट शुड एनकरेज द इंक्लूसिव गवर्नेंस इन नेपाल। नेपाल के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इट इज़ इन इंडियाज़ best interest that India should balance its engagement while respecting the Nepal's sovereignty. Take 30 seconds and solve this final question. With reference to India-Nepal relation, consider the following statement. India is Nepal's largest partner and largest source of foreign investment. 1950 Treaty of Peace and Friendship allows citizens of both countries to reside and work in each other's territory without visa requirements. India imports majority of its petroleum needs from Nepal. सोचिए आप, थिंक अबाउट इट एंड आंसर। Choose your answers and write in the comment section. Thank you for joining us. Our smart books are now available in Asmis medium as well. You may consider buying them. These are one point solution, one stop solution for the preparation methodology. It contains 10 smart books for prelims subject wise and 7 smart books for mains. Here is the contact details. You can consider calling this number and get access to these books. Thank you very much. Thank you for joining us. See you tomorrow with another set of lecture with more informative articles and analysis. Thank you. All the best and have a good day.